नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने आज डीसी कार्यालय में सभी सरकारी व प्राइवेट डॉक्टरों से बात की और कोरोना की तीसरी लहर को मात देने के लिए काम करने का आग्रह किया। जिला राष्ट्रीय बसवा दल और लिंगायत समाज बीदर की ओर से स्कूल में दिए जाने वाले खाने में पौष्टिक भोजन देने की मांग करते हुए रैली निकाली गई। RT-PCR नेगेटिव होने के बाद भी 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे कर्नाटक आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री। कर्नाटक सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कृषि कानून वापस लेने पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत नहीं होती। कई दिनों से बिजली पानी की सप्लाई नहीं, घरों में घुस रहे सांप। चेन्नई में बाढ़ के चलते घरों में फंसे लोग। बिहार की तथाकथित डबल इंजन सरकार ट्रबल इंजन में बदल गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए लगाया यह आरोप। अब समाचार विस्तार से। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने आज सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों की मीटिंग आयोजित की, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को निर्देश दिया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान के अनुसार रामचंद्रन आर ने सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से आग्रह किया कि वो कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दें और सभी मिलकर ओमिक्रॉन को मात देने के लिए सक्रिय रहें। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ। ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿತ್ತು। ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಆಯಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 10-15 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 235 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯಪಡಿಸ್ತೀವಿ। ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ PHANE ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಾಗರಿಕರು ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು। ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಂಬಿರಿ। ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು। ಈಗ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಏನು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಿದೆ। ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬಾರದು, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದಿರಬೇಕು। ಕನಿಷ್ಠ 1 ಡೋಸನ್ನಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।
जिला राष्ट्रीय बसवा दल और लिंगायत समाज बीदर की ओर से स्कूल में दिए जाने वाले खाने में पौष्टिक भोजन देने की मांग करते हुए बसवेश्वर सर्कल से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली गई और डीसी कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में एक मेमोरेंडम दिया गया। जिला राष्ट्रीय बसवा दल और लिंगायत समाज बीदर की मांग है कि सरकार की तरफ से कल्याण कर्नाटक विभाग के 7 जिलों में सरकारी और अनुदैनिक स्कूल्स में 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडे दिए जाते हैं, जबकि स्कूल आने वाले बच्चों में कई बच्चे शाकाहारी रहते हैं, कई अंडा नहीं खाते। इसलिए दोपहर के भोजन में अंडे न दिए जाए, उसकी बजाय पौष्टिक भोजन दिया जाए। इस संबंध में इस समाज के लोगों ने केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इसका पूरा विवरण दिया। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ। ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಇವತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳ ಸಂಘಟನೆಯು ಈ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡಲೇ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಧರ್ಮೀಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಜೈನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆಹಾರಗಳು ಇವೆ, ಹಾಲಾಗ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು। ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ। ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಲಿಂಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು। ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವತ್ತೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಆದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भारत में स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बता दें कि हाल ही में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनमें वायरस का वेरिएंट है या कोई और। दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद 2 लोगों को कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद एक और जगह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित हवाई अड्डे में सफाई और टेस्टिंग को तेज कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। अबू धाबी की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने कहा, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट देने के बावजूद अधिकारियों ने हमारा एक और टेस्ट कराया और 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति फीस ली। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को तीनों कृषि कानून पर केंद्र सरकार का यू-टर्न देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने बिना चर्चा के ही दोनों सदनों में कानून वापसी बिल पास करा दिया, जिसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार के इस रवैये पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस लोकसभा में जब कभी भी कानून वापस किया गया तो चर्चा की गई। इस सरकार की जिद है कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें उनको क्यों तकलीफ हो रही है? चर्चा होती तो MSP की बात होती, किसानों के फायदे की बात होती, पर सरकार नहीं चाहती है। ओवैसी ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेपोलियन बोनापार्ट या गयासुद्दीन बलबन तो नहीं है। फरमान जारी कर देंगे और वह कानून बन जाएगा। आप यह कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों को इतनी तकलीफ नहीं होती। सरकार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आपने कानून इसलिए वापस लिया क्योंकि आपको चुनाव में हार नजर आने लगी। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बड़ा दिल दिखाया है। 750 लोग मारे गए, आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो इतने लोग मरते ही नहीं। कौन सा बड़ा दिल दिखाया, यह गलत बात है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के नजदीक आते ही अब राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है। इस समय पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के बीच जमकर ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। दोनों नेता एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। CM केजरीवाल ने पंजाब दौरे में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था। अब उनके इस वादे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल पूछते हुए उन पर तंज कसा है। सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि दिल्ली में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने CM केजरीवाल पर दिल्ली में शिक्षकों से किए गए वादे और कॉलेजों का वादा न पूरा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कांग्रेस नेता ने पूछा कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नौकरी और शिक्षकों की बात करते हैं, लेकिन आपके मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं है। उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार दिल्ली में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि तथाकथित डबल इंजन वाली इस सरकार का इंजन खराब हो चुका है और अब यह किसी काम का न होकर ट्रबल इंजन में परिवर्तित हो गया है। विधानसभा परिषद में राजद नेता यादव ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार सरकार पर सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया, नीति आयोग की रिपोर्ट में लगभग सभी मामलों में बिहार सरकार को विफल दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। चेन्नई के एक परिवार ने उस वक्त राहत की सांस ली जब नारायणपुरम में अपने घर में बंद योगनंदन ने एक होटल में चेक इन करने का फैसला किया। दक्षिण चेन्नई में चट्टीनाड एनक्लेव के आसपास करीब 200 घरों में पानी घुसने पर पुलिस राहत कार्य के लिए आगे आई है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मंजूर लेआउट पर अनाई एरी झील के रास्ते पर बनाए गए इस एनक्लेव में रहने वाले कई परिवारों ने घर छोड़ दिया है, क्योंकि इस साल भी यह इलाका बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है। योगनंदन ने कहा, पिछले 4 दिनों से हमारे घर में बिजली नहीं है, हम अब इस तरह नहीं रह सकते। वहीं वासुदेवन का कहना है, हमने 2015 से इतना पानी का टैक्स दिया है, लेकिन कभी पानी नहीं मिलता। अब हमारे वॉशरूम में भी पानी नहीं है। कम से कम उन्हें इलाके में बिजली बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के एक प्रमाण के रूप में चेहरा पहचानने वाली विशिष्ट तकनीक को सोमवार को पेश किया। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह खास तकनीक पेश करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त एवं बुजुर्ग पेंशन भोगियों को काफी सहूलियत होगी। चेहरा पहचानने वाली इस तकनीक की मदद से पेंशन धारकों के जीवित होने की पुष्टि की जा सकेगी। दरअसल सभी पेंशन धारकों को साल के अंत में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनकी आगे की पेंशन जारी रखी जाती है। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है और उनकी जिंदगी को सुगम बनाने की कोशिश करती रही है। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने पेंशन धारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की थी। अब चेहरा पहचानने वाली इस तकनीक से उन्हें और भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करतारपुर साहिब के बाहर बिना सिर ढाके फोटोशूट कराने का मामला गरमाने के बाद पाकिस्तान मॉडल को माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल पाक पुलिस ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब में
परिधान के एक ब्रांड के लिए बिना सर ढके फोटोशूट कराए जाने के बाद पाकिस्तानी मॉडल और ब्रांड के खिलाफ सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जांच शुरू की है। पुलिस ने यह जांच तस्वीरों को लेकर एक भारतीय सिख पत्रकार द्वारा आलोचना किए जाने के बाद शुरू की थी। पाकिस्तान मॉडल की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस घटना के लिए माफी मांगी गई और उसने कहा कि उसका इरादा सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं था। अपने तीखे बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत की बेटी का संगीत वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हमेशा से गंभीर नेता की छवि में दिखने वाले संजय राउत का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संजय राउत बेटी के संगीत समारोह में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले के साथ डांस करते दिख रहे हैं। राउत के इस अंदाज को देखने के बाद जहां हर कोई हैरान है, वहीं लोगों का कहना है कि बेटी की शादी में भला कौन खुश न होगा। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की बेटी पूर्वाशी की शादी से पहले मुंबई के एक 5 स्टार होटल में संगीत समारोह किया गया था। इस समारोह में एनसीपी चीफ शरद पवार समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। पूर्वाशी के संगीत समारोह में बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और संजय राउत का अलग ही अंदाज देखने को मिला। बेटी की शादी के जश्न में शामिल राउत ने सुप्रिया सुले के साथ खूब डांस किया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने आज डीसी कार्यालय में सभी सरकारी व प्राइवेट डॉक्टरों से बात की और कोरोना की तीसरी लहर को मात देने के लिए काम करने का आग्रह किया। जिला राष्ट्रीय बसवा दल और लिंगायत समाज बीदर की ओर से स्कूल में दिए जाने वाले खाने में पौष्टिक भोजन देने की मांग करते हुए रैली निकाली गई। RT-PCR नेगेटिव होने के बाद भी 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे कर्नाटक आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री। कर्नाटक सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कृषि कानून वापस लेने पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत नहीं होती। कई दिनों से बिजली पानी की सप्लाई नहीं, घरों में घुस रहे सांप। चेन्नई में बाढ़ के चलते घरों में फंसे लोग। बिहार की तथाकथित डबल इंजन सरकार ट्रबल इंजन में बदल गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए लगाया यह आरोप। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।